Good morning, children. Once again we are here. So we were doing Pythagoras theorem last time. Now we are continuing Pythagoras theorem once again. Some questions of Pythagoras. Okay, we have done some questions. Now we are going to do some more questions. Now I am taking question number 10 today of exercise 6.5. Now what is question number 10? So I am reading first. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake to be driven so that wire will be taut? In general, आपने देखा होगा सड़कों के किनारे पे इलेक्ट्रिक पोल बने होते हैं। इलेक्ट्रिक पोल होते हैं बिजली के खंभे, उसको टाइट करने के लिए साइड में एक वायर बांधा जाता है, उसे बोलते हैं स्टेक वायर। तो उस स्टेक वायर की लेंथ का हमें पता है, दैट इज 24 मीटर लॉन्ग। खंबे को सीधा रखने के लिए एक वायर बांधा जाता है, उसे बोलते हैं स्टेक वायर। उसकी लेंथ है 24 मीटर, ठीक है। एंड पोल ऑफ द हाइट इज 18 मीटर, और पोल की हाइट है 18 मीटर। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पोल से कितने डिस्टेंस पर उसे जमीन में गाड़ा गया है, ठीक है। अर्थ को कहाँ से खोद के उसको गाड़ा गया है, ठीक है। तो ये है कि पोल से कितने डिस्टेंस पर उसको जमीन से टच कराया गया है। ओके चिल्ड्रन, सो पोल हाइट ऑफ द पोल इज 18 मीटर लाइक दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। हाइट ऑफ द पोल इज 18 मीटर and this is the length of the wire, that is 24 meter. Okay children, this is 24 meter and this is 18 meter and you have to find the value of x. तो आपको पता ही है जब पोल जमीन पे खड़ा होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो you can use Pythagoras theorem simply. So base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. तो solution डायरेक्टली लिखना है इसका solution x square plus 18 square is equal to 24 square. Clear children? So x square will be equal to 576. 24 का स्क्वायर 576 होता है, 18 का स्क्वायर 324. So x square is equal to 6 minus 4 2 and 7 minus 2 5 and 5 minus 3 2. So x is equal to under root 252. ओके चिल्ड्रन, इसका अंडर रूट आप ले सकते हैं। इसका अंडर रूट कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं आएगा इसका, तो जितना भी होगा वो इसका फाइनल आंसर है। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ डू वन मोर क्वेश्चन। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 चिल्ड्रन। Two poles of height 6 meter and 11 meter. 6 meter and 11 meter. This is 6 meter and this is 11 meter. Stand on the plain ground if the distance between the feet of the pole is 12 meter. ये distance 12 meter. Find the distance between their tops. ये distance हमें find करना। तो A B C D, ठीक है। A B C D, यहां से मैं एक लाइन इसके पैरेलल बना देता हूं। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने BD। ये टोटल हाइट है 11 मीटर और ये हो गया D तो है हमारे पास ऑलरेडी E पॉइंट। ओके चिल्ड्रन, तो ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर हो गया। जब ये 6 हो गया तो 11 माइनस 6 ये 5 हो गया और ये 12 है, तो 12 ये हो गया और 5 ये हो गया। सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADE। वी हैव टू फाइंड AD। तो टू फाइंड AD सॉल्यूशन। AE is equal to BC and that is equal to 12 and DE is equal to 11 minus 6, that is equal to 5 and we are finding AD square.
AD square is equal to DE square plus AE square. So DE is already given 5 square plus 12 square. So 25 plus 144, so that is 169. So AD square is equal to 169. So AD will become equal to 13 meter. So distance between their tops, distance between their feet is given 12 meter and distance between their tops is 13 meter. Okay children, so this was question number 12. Now I am taking question number 15. That is very important question और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आता है। 3 सेट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसमें कोई से ना कोई से सेट में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का हमेशा आता है। रिमेंबर ऑलवेज। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, Question number 15. In an equilateral triangle ABC, D is the point on the side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. एक equilateral triangle बना रहे हैं हम. D is any point. Okay. A, B, C. D is any point. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इसमें. ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है. ओके चिल्ड्रन, व्हाट इज गिवन? AB is equal to BC is equal to AC. Equilateral triangle given. AB is equal to BC is equal to AC. And BD is equal to 1/3 of BC. ये जो BD पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये पूरे BC का 1/3 पार्ट. ओके, now to prove. To prove 9AD square is equal to 7AB square. ये हमें प्रूव करना. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ प्रूव. एक कंस्ट्रक्शन भी करना है. ड्रॉ द परपेंडिकुलर AE ऑन BC. कंस्ट्रक्शन. Draw perpendicular AE on BC. क्लियर? अब जरा यहां से स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल ABE प्रूफ. एक बार फिर से बता देता हूं क्वेश्चन में. गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC in which BD is equal to 1/3 of BC. And all three sides are equal. Equilateral triangle है तो तीनों साइड इक्वल होंगी. And BD is also given 1/3 of BC. BC मान लो 9 सेंटीमीटर तो BD 3 सेंटीमीटर होगा, उसका 1/3 पार्ट. क्लियर चिल्ड्रन? अब प्रूव क्या करना है? 9AD स्क्वायर, AD ये वाला पार्ट है, AD 9 टाइम्स AD स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर. तो हम तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बाकी अपने आप ही चीज घटते बढ़ते उधर आ जाएगी. ओके चिल्ड्रन, so use Pythagoras theorem in triangle ABE first. First I am finding AB square. In triangle ABE, in right triangle ABE, AB square is equal to AE square plus BE square by Pythagoras theorem. बार बार लिखने की जरूरत नहीं है.
बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर चिल्ड्रन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए परपेंडिकुलर हो गया और बी इसका बेस हो गया। अब मैं बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक बी डी है मेरे पास और एक डी ये रहा। तो बी कैन बी रिटन बी डी प्लस डी। सो ए बी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी डी प्लस डी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी डी प्लस डी होल स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी डी इंटू डी। ये बात समझ में आ गई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डी इंटू डी। ये बात क्लियर है चिल्ड्रन? अब आप यहां से ये देख के बताओ, डीई का स्क्वायर, ये छोटा वाला ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो मैं इन दोनों का स्क्वायर ले रहा हूं यहां, इन दोनों का स्क्वायर का सम, ये बन गया ए डी स्क्वायर। सो इट विल बिकम ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2bd इंटू डी। ये आ गया। आगे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आप देख सकते हो ए डी स्क्वायर के इक्वल है। ये आप ब्रैकेट में बता भी सकते हो। ओके चिल्ड्रन, नाउ ए बी स्क्वायर वंस अगेन, ए डी स्क्वायर। अब बी डी को हटा रहा हूं मैं यहां से, बी डी को क्या लिख रहा हूं, बी डी ऑलरेडी गिवन है 1/3 ऑफ बी सी, बी डी की वैल्यू 1/3 ऑफ बी सी लिखो, 1/3 ऑफ बी सी होल स्क्वायर। यहां भी बी डी की वैल्यू पुट करो, 2 टाइम्स बी सी बाई 3। और डीई को कैसे लिख सकते हैं, डीई कैन बी रिटन बीई माइनस बीडी। ये डीई को लिख रहे हैं, डीई कैन बी रिटन बीई माइनस बीडी। डीई को रिप्लेस कर दिया बीई माइनस बीडी से। अब बीई तो आधा है पूरे का, पूरे बीसी का हाफ है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बीई बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, तो बीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 9 प्लस 2bc by 3. BE can be written BC by 2 and this is BC by 3. Okay children? टू बाई 3 ये हो गया BC, इसका एलसीएम लिया यहां 3BC माइनस 2BC अपॉन 6। क्लियर? 3BC 2BC अपॉन 6। सो AB स्क्वायर फर्दर विल बिकम AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 9 प्लस 2 से 3 कैंसिल कर दिया, 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया BC अपॉन 9 इंटू BC। इसके अंदर से 3BC माना 2BC, BC हो गया, तो ये हो गया BC स्क्वायर बाय 9। सो AB स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 9 प्लस BC स्क्वायर बाय 9। 9 लेगा 3 इंटू 3 9 हो गया, BC इंटू BC, ये BC हो गया BC स्क्वायर। अब फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए थ्रू आउट 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थ्रू आउट मल्टीप्लाइंग बाय 9। तो 9AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? अब आगे देखते हैं। 9AB स्क्वायर is equal to 9AD square
प्लस 2bc स्क्वायर, bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर 2bc स्क्वायर, 9ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9ad स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। मैंने bc की जगह ab लिख दिया बिकॉज ab इज इक्वल टू bc इज इक्वल टू ac। ओके चिल्ड्रन, अब 9ab स्क्वायर में से 2ab स्क्वायर माइनस हो गया, 9ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9ad स्क्वायर। तो फाइनली इट विल बिकम 7ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9ad स्क्वायर। फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर चिल्ड्रन? बहुत लंबा क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, लेकिन एक बार मैं फिर से इसको पूरा रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन था? इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, एडी एक लाइन गिवन थी और बीडी की डिस्टेंस गिवन थी 1/3 ऑफ बीसी, बीडी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बीसी। ओके, यहां तक करने के बाद अब हमने इसमें जब हमने प्रूव किया ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, ऊपर से देखो वहां से, इन राइट ट्राइंगल ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। सबसे बड़ा काम बस ये है कि इसको आप याद रखें, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। फिर बी ई को दो पार्ट में ब्रेक किया, बी डी प्लस डी ई, ये लिख दिया बी डी प्लस डी ई। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर हमने देखा ए ई स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर डी ई का स्क्वायर बन गया ए डी स्क्वायर के इक्वल। तो इन दोनों की जगह लिख दिया, जहां मैंने एरो लगाया बन गया ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर एज इट इज बचा और ये दोनों टर्म एज इट इज बचे। अब मैंने बी डी की वैल्यू पुट कर दी यहां से। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी फ्रॉम हियर, दैट इज 1/3 ऑफ बीसी। तो बी डी कैन बी रिटन 1/3 ऑफ बीसी होल स्क्वायर एंड बी डी इज आल्सो 1/3 ऑफ बीसी। और डीई को दो पार्ट में ब्रेक किया, बीई माइनस बीडी। यहां देखो बीई में से बीडी माइनस कर दिया तो डीई की वैल्यू आ गई। बीई वी हैव बीसी अपॉन 2 एंड बीडी वी हैव बीसी अपॉन 3। बीई की वैल्यू पूरे बीसी का हाफ है, तो बीसी अपॉन 2 माइनस बीसी अपॉन 3। इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आया बीसी अपॉन 6, 2 से 6 कैंसिल हो गया और 3 आ गया, बीसी स्क्वायर अपॉन 9 आ गया। अब ये दो जगह फ्रैक्शन बन गए, थ्रू आउट 9 का मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन से, ठीक है। 9ab स्क्वायर इक्वल टू 9ad स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर हो गया 2bc स्क्वायर। bc स्क्वायर इज रिमूव्ड बाय ab स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज bc स्क्वायर, बिकॉज ab इज इक्वल टू bc इज इक्वल टू ac। तो bc को ab से रिमूव कर दिया क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। सो रिमूविंग bc स्क्वायर बाय ab स्क्वायर, ये 2ab स्क्वायर उधर जाके माइनस हो गया, 9ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9ad स्क्वायर। तो 7ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9ad स्क्वायर। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो क्वेश्चन इज वेरी लॉन्ग, सो यू कैन डू योरसेल्फ 2-3 टाइम्स यू हैव टू डू, तब जाके ये क्वेश्चन आपको, आप इस क्वेश्चन को परफेक्टली कर पाएंगे। 2-3 टाइम्स आपको करना ही पड़ेगा, एक ही बार में 2-3 टाइम्स। क्लियर चिल्ड्रन? तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। नाउ आई एम डूइंग वन मोर क्वेश्चन। Question number 16 children. In an equilateral triangle, फिर से equilateral triangle का क्वेश्चन है, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. Once again we have equilateral triangle. AB is equal to BC is equal to AC. Given AB is equal to BC is equal to AC. ये इसका परपेंडिकुलर है, दैट इज H AD। क्लियर चिल्ड्रन? और टू प्रूव क्या है? टू प्रूव
3 टाइम्स ऑफ वन साइड स्क्वायर 3 टाइम्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर। किसी एक साइड का स्क्वायर और उसका 3 गुना इज इक्वल टू कोई एक इसका ऑल्टीट्यूड उसका स्क्वायर उसको 4 टाइम्स। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द ऑल्टीट्यूड। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्रूफ इन इक्विलैटरल ट्रायंगल H is equal to root 3 times of one of the side। ये इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है। ओके चिल्ड्रन, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है H is equal to अंडर रूट 3 by 2 into one of the side। तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो H is equal to अंडर रूट 3 by 2। H की जगह मैं AD लिख रहा हूं। AD is equal to अंडर रूट 3 by 2 AB। कोई सी एक साइड ले ली मैंने इसको, कोई सी भी एक साइड हम यूज कर रहे हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 by 4 into AB स्क्वायर। ओके, तो 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3AB स्क्वायर। बस यही हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। बस इतना ही हम ध्यान रखेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 3 by 2 into वन ऑफ द साइड। तो H is equal to रूट 3 by 2 into वन ऑफ द साइड। तो AD will become equal to रूट 3 by 2 into AB। Now squaring both the side, AD square is equal to 3 by 4 into AB square। तो 4AD square is equal to 3AB square। तो hence proved। ओके चिल्ड्रन, एक क्वेश्चन और कराते हैं जरा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 14 चिल्ड्रन। Question number 14. The perpendicular from A on the side BC of triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3CD। हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है इस टाइप से। Such that D is any point intersect BC। The perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersect BC at the point D। BC at the point D। Okay, such that DB is equal to 3CD। BD is equal to 3CD। क्वेश्चन थोड़ा सा फिगर गलत हो गया चिल्ड्रन, दोबारा से बनाते हैं। ABC और D is the point here such that ये BD CD का 3 गुना होना चाहिए। ओके, तो गिवन BD is equal to 3CD। क्लियर? और AD is the perpendicular on BC। To prove 2AB square is equal to 2AC square plus BC square। ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव BD is equal to 3 times of CD, ये गिवन है। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ABC इज ए सिंपल ट्राइंगल और नॉर्मल ट्राइंगल गिवन।
in which AD is perpendicular on BC and such that BD is equal to 3CD. CD का 3 गुना BD के इक्वल है, तो BD is equal to 3 times of CD. Now to prove 2AB square, ये 2AB square is equal to 2AC square plus BC square, ये पूरा BC. ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहले हम AB स्क्वायर फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल AD, इन ट्राइंगल ABD. प्रूव in right triangle ABD. AB square is equal to AD square plus BD square by Pythagoras theorem. Clear children? AD square plus BD square. ओके, अब BD को रिमूव करते हैं यहां से. हमें आंसर AC, हमें आंसर तीनों साइड्स की फॉर्म में लाना, ना हमें AD चाहिए, ना BD चाहिए, ना DC चाहिए, तो इसको हमें रिमूव करके रखना है. सो अब ये बन गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा उस ट्रायंगल से भी निकालते हैं जरा, उस ट्रायंगल से भी निकालते हैं. AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ओके चिल्ड्रन, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हो गई. ये भी सेम सिचुएशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं. दिस, दिस एंड दिस. जरा बताएं यहां क्या बनेगा. सो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. ओके, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. BD is already given 3 times of CD. 3CD का होल स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. ओके चिल्ड्रन, सो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. Furthermore, 8CD square, it will become 8CD square. Clear? So AB square is equal to AC square plus 8CD square. ये बात समझ में आ गई बेटा सबके. AC square plus 8CD square, ये AC square इधर आ गया. अब CD को देखेंगे, यहां से हम देख के बताएंगे. अगर BD हमारे पास BD प्लस DC ऑल्सो, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 3. ऑल्सो BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, तो BC इज इक्वल टू 3CD प्लस CD, तो BC इज इक्वल टू 4CD, तो BC अपॉन 4 इज इक्वल टू CD. घुमा फिरा के कहने का मतलब है इस CD को यहां से हटाना है और CD की जगह लिखना BC बाई 4. ठीक है, तो इस BC को हटाना, इस CD की जगह लिखना BC बाई 4 होल स्क्वायर. सो AB स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 outside and BC by 4 whole square. So AB square is equal to AC square plus 8 into BC square by 16. So 8 से 16 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2. क्लियर? AB square is equal to AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2. अब थ्रू आउट 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2AB स्क्वायर
प्लस इज इक्वल टू 2ac² प्लस bc²। ये हमें प्रूव करना था। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन समझाता हूं। एक बार इस ट्रायंगल को यूज किया हमने ab² की वैल्यू फाइंड की। एक बार इस वाले ट्रायंगल को यूज किया तो ac² बन गया ad² प्लस cd²। फिर इन दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। BD को रिमूव कर दिया, रिमूविंग BD बाई 3CD, 3CD का होल स्क्वायर बन गया 9CD² माइनस CD²। 9CD² माइनस CD² दैट विल बिकम 8CD²। So answer will become AB² is equal to AC² plus 8CD²। अब CD को रिमूव करना है क्वेश्चन से, तो CD कैन बी रिटर्न, CD को निकालना है यहां से। तो हमें पता है BC is equal to BD plus CD। BD की वैल्यू पुट कर दी 3CD, तो 3CD plus CD 4CD, तो CD की वैल्यू हो गई BC by 4। अब CD की वैल्यू हो गई BC by 4 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर किया BC² by 16। अब ये आंसर आ गया AB² इक्वल टू AC² प्लस BC² by 2। 2 का थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया वो फाइनल आंसर, हेंस प्रूव। यस चिल्ड्रन, नेक्स्ट टाइम हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क एनी टाइम। फोन पे भी बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हो, और मेल पे भी एड्रेस कर सकते हो आप। तो आपको हेजिटेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी हो आपको सॉल्व करना है, किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? थैंक यू।